جن صاحب چائنا جو ہے پورے پیسیفک میں اسرٹ کرنا شروع ہو گیا ہے اینڈ ایک ریسنٹ انہوں نے ایک ایکسرسائز کی ہے نہیں ایک ریسنٹلی انہوں نے ایک میزائل کا تجربہ بھی کیا ہے. میں اس کی اسپیسیفک ڈیٹیلز میں انٹینشنلی نہیں جا رہا بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم لگتا یہ ہے کہ جناب جس طریقے سے چائنا ایکسلریٹ کر رہا ہے اور ان دا سیز ان دا انٹرنیشنل واٹرز سم تھنگ بگ از ہیپننگ اور ابھی تک ہمیں ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس نہیں ملا. واٹ ایگزیکٹلی ڈز اٹ انڈیکیٹ جن صاحب؟ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں جو چائنا یو ایس رائبلری ہے وہ تو چل رہی ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو بہت بڑی ٹرانزیشنز آ رہی ہیں اس میں سے ایک ٹرانزیشن یہ ہے کہ چائنا ایمرج کر رہا ہے ایز اے گلوبل سپر پاور اور وہ چیلنج کر رہا ہے یو ایس ہیجمنی کو. ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وزٹ ہوئی چائنا میں تو وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی تھی پریزیڈنٹ شی نے. بہت بریف انہوں نے جب بات چیت کی تو اس میں انہوں نے 2 ورڈز یوز کیے تھے، تھیوسیڈائڈیز ٹریپ، کہ ہمیں تھیوسیڈائڈیز ٹریپ کا وکٹم نہیں بننا چاہیے، وچ امپلائز کہ ایک اسٹیبلش پاور ہوتی ہے اور ایک ایمرجنگ پاور ہوتی ہے، اور ایمرجنگ پاور جب اسٹیبلش پاور کو چیلنج کرتی ہے تو چانسز ہوتے ہیں جنگ کے. یہ تھیوسیڈائڈیز نے کہا تھا پری بی سی، جو کہ گریک فلسفر تھا. سو پریزیڈنٹ شی نے کہا کہ امریکہ اور چائنا کو ان اے ویری کارڈیل ایٹماسفیئر رائز کرنا چاہیے، اور اگر یہ چینج آ رہی ہے تو ہمیں جنگ کا راستہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو بھی ڈومینیشن ہے، جب بھی کوئی پاور، کوئی طاقت گین کرتی ہے، کوئی بڑا ملک اپنی پاور گین کرتا ہے تو آپ اس کا ایریا آف انفلوئنس ایکسپینڈ کرتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ 1823 میں مونرو ڈاکٹرین آئی تھی جس میں کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کو اپنا ایکسکلوسو زون ڈکلیئر کیا تھا امریکہ نے. اس کے بعد امریکہ کی ڈومینیشن پوری دنیا کے اوپر آئی. اب امریکہ جو ہے وہ ریگریشن اور وہ جو ہے ریورس گیئر پہ ہے، ویئرز چائنا جو ہے اس کا ایریا آف انفلوئنس ایکسپینڈ کر رہا ہے. سو پیسیفک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے جہاں پہ کہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس کی ڈومینیشن ہوگی. کچھ عرصہ پہلے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی آئی تھی امریکہ کی، جو یہ امپلائی کر رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ٹرانس اٹلانٹک سے ٹرانس پیسیفک اورینٹیشن کی طرف جا رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم نے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو ریورٹ کر دیا بیک ٹو پیسیفک اسٹریٹجی. سو یہ کنٹسٹیشن جاری ہے. پچھلے جو چند سال ہیں بہت ڈیفائننگ رہے ہیں اور میرے نزدیک اس میں یہ جو سارا پروسیس ہے سپیڈ اپ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ چند سال پہلے جو ملٹری مائٹ ڈسپلے کی چائنا نے آن نیشنل ڈے پریڈ، پھر یہ کہ 25 اور 26 کی جو 3 جنگیں ہیں، پاکستان انڈیا کی جنگ، اسرائیل اور ایران کی جنگ، اور سیکنڈ 26 میں پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ، یو ایس شامل، ان تینوں جنگوں سے جو بینیفیشری تھے وہ چائنا اور رشیا تھے. اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ریگریشن پہ ہے اور چائنا جو ہے وہ ایکسپینشن پہ ہے. اچھا جن صاحب، ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ دیکھا جائے کہ جس طریقے سے ابھی جس تجربے کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو چائنا نے پیسیفک میں کیا میزائل میں، دیٹ کین آلسو ہیو ریپیکشنس. ریپیکشن سے میری مراد یہ ہے کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، ہیجمنی کی بات آپ نے کی، اس کو ایکسپلین کر دیا آپ نے، لیکن اگر یہ اس کا رسپانس آتا ہے امریکہ کی طرف سے تو ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن ان دا انٹرنیشنل واٹرز اینڈ پیسیفک؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ امریکہ رسپونڈ نہیں کرے گا. اچھا، لیکن یہ کہ اگر رسپونڈ کرتے ہیں، بیکاز ان کی جو مائٹ ہے اور ان کا جو اسرشن آف پاور ہے ان پیسیفک، وہ بیسیکلی چیلنج ہو رہا ہے اس یہ جو ٹیسٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ ٹٹ فار ٹیٹ چیز چلے گی، اور اگر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر امریکہ نی جرک رسپانس کے طور پہ وہ بھی کوئی اس طرح کا جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی اس کی امپلیکیشنز ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، امریکہ اس پہ نہیں کرے گا. وائی از اٹ سو جن صاحب کہ رسپانس نہیں کرے گا؟ اٹس اے سول سپر پاور. امریکہ از اے سول سپر پاور، چائنا از اے ایمرجنگ سپر پاور. سو
why would America not respond to all these things? देखिए मेरे नज़दीक जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि अमेरिका को ने रियलाइज कर लिया है कि अब चाइना को कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। Sure. चाइना जिस स्पीड से राइज कर रहा है, जिस तरीके से वो गेन कर रहा है, सो अब जो है उसको कंटेस्ट करना या इस तरीके से टिट फॉर टैट रिस्पॉन्सेज देना, वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। ये एक ऐसी चेंज है जो कि एक नेचुरल है, टू एवरी राइज देयर इज अ फॉल्ट। अमेरिका ने अपना पीक टाइम देख लिया, अब उनको वेरियस चैलेंजेस हैं और वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे अपने जो है वो आइसोलेशनिज्म पे, कि अपना जो इंटरनल हाउस है उसको बेहतर करें और उस पर फोकस करें। इसीलिए आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़्यादा बातचीत करते हैं ग्रीनलैंड की, कनाडा की, मैक्सिको की, फिर उसके बाद वेनेजुएला की और क्यूबा की। सो मेरे नज़दीक मोनो डॉक्ट्रिन जिसके तहत वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से उन्होंने ओरिजिनेट किया था, वो रिग्रेस करके उसी के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर एज ऑफ नाउ विच इज बीइंग चैलेंज्ड। लेकिन ये है कि वो किसी और डोमेन में किसी और तरीके से डेफिनेटली काउंटर मेजर्स लेंगे, लेकिन शायद ये वो वाली वो जो है वो एक्सचेंजेस ना हो जो कि कोल्ड वॉर में चलते थे कि एक तरफ से होता था तो दूसरा करता था। आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से होगा। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा पाकिस्तान के रोल पे बिटवीन अमेरिका और ईरान, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। ट्रंप वेरी क्लियरली सेड कि आई डोंट थिंक सो दिस MOU इज़ वर्किंग। इन सो मेनी वर्ड्स ट्रंप सेड दिस। अब अगर इफ़ दिस MOU इज़ नॉट वर्किंग, एट द वेरी सेम टाइम ही वांट्स कि उसकी जो टीम है, अमेरिका की जो टीम है, ईरानियन टीम के साथ इंटरैक्ट भी करती रहे। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि हर वर्ल्ड वॉर में बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रहती है और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी के चैनल्स बंद नहीं किए जाते, वो विंडो हमेशा ओपन रहती है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस फिर ये एग्रीमेंट जो होना है या होना था लाइक 60 डेज़ के टाइम स्पैन में, उसमें से काफ़ी अर्सा तो गुजर चुका। अब वो एग्रीमेंट जो है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, वो हो सकेगा इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन, वन, एंड सेकेंडली क्या वो वाकई ही उसमें एग्रीमेंट की सूरत इख्तियार कर सकेगा? ये 14 पॉइंट जो ले डाउन किए गए थे और उसमें से 5 पॉइंट्स पे ज़ीरो इन किया गया था, उस पर जनाब कोई एग्रीमेंट हो सकेगा? ठीक है, टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक्स भी जारी हैं, ईरान का रिस्पॉन्स भी जारी है। सो हाउ शुड वी टेक दिस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होगा, नहीं होएगा, क्या होगा? देखिए राणा साहब, जो कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जो इमर्ज होकर सामने आई हैं, एक तो ये है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड है और एजिटेटेड है। ना वो जंग से ब्रोबीट कर सका ईरान को, ना वो नेगोशिएशन में उस तरीके से ईरान के ऊपर प्रिवेल कर सका, ना वो थ्रेट्स जो वेरियस टाइम्स पे प्रेसिडेंट ट्रम्प देते रहे हैं, सफा हस्ती से बता दूंगा, ना उनसे वो उन्हें कोई कामयाबी हुई। अब इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के कंट्रोल के इशू पे ईरान जो है बहुत, आई वुड से, सक्सेसफुली इरिटेट कर रहा है यूएस को, और यूएस को उसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हो रही। वो नए रास्ते क्रिएट करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, और ईरान उसको जो है वो स्कटल कर देता है। इस सारी फ्रस्ट्रेशन में और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ट्वीट किया, लेकिन ज़रूरी है कि हम उनकी लैंग्वेज को देखें। सबसे जो ओपनिंग वर्ड्स थे वो थे टू मी, दैट मीन्स वो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। देयर आर टू पार्ट्स, एक है सिस्टम ऑफ अमेरिका और दूसरा है प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ। सो उन्होंने एक इंडिकेशन दी है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे नजदीक MOU हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। लेकिन साथ ही उन्होंने सिस्टम को नहीं रोका। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ नेगोशिएशन, मैं बातचीत खत्म कर रहा हूँ। ये उन्होंने जरूर किया कि ऑथराइज की स्ट्राइक्स। तो ये वो हॉट एंड कोल्ड है जो खेला जा रहा है ईरान के साथ, एक दूसरे की नर्व्स के साथ प्ले किया जा रहा है। अभी इन्होंने 91 टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक किया और फौरन उसके बाद कह दिया कि हमें ईरानियंस कितने अप्रोच किया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, तो इसलिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक और रियलिटी जो हमें ज़हन में रखनी होगी कि अमेरिका के इंटरेस्ट में लॉन्ग वॉर नहीं है। अगर लॉन्ग वॉर होती है तो अमेरिका उससे ब्लीड करेगा और फायदा अमेरिका के राइवल्स को होगा, जिसका आपने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया, दैट इज चाइना एंड रशिया। वो चाहेंगे कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका ईरान में फंसे, जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है।
सो वो ये हॉट एंड कोल्ड चलता रहेगा। मेरे नज़दीक ये नेगोशिएशन भी जारी रहेंगी और जैसे आपने कहा कि वक़्त की कमी बेशी के साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट इससे ज़रूर निकलेगा। अच्छा, चले। अच्छा, एक चीज़ वेरी क्विकली ज़रा बताइएगा। चले, ठीक है, इससे ये तो कोल्ड वॉर एरा की आपने एक एग्जांपल है, स्टडी केस है कि जिसमें रशिया जो है, सोवियत यूनियन, साबिक सोवियत यूनियन जो है वो इंगेज हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो वो फाइनेंशली ब्लीड कर गया, ठीक है। और जब वो फाइनेंशली ब्लीड किया अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने, तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया। सो वो उसी तरह की स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे इन प्लेस लाई जा सकती है कि जनाब वो इंगेज करके रखे या इंगेज हुआ रहे अमेरिका ईरान के अंदर, तो वो फाइनेंशली ब्लीड कर सकता है या सफ़र कर सकता है। बट एट द वेरी सेम टाइम देखें आप तो उसका जो अलाय है, जो डाई हार्ड अलाइज हैं उसके, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल, वो तो चाहते हैं कि दिस जॉब शुड बी फिनिश्ड, ईरान जॉब शुड बी फिनिश्ड, इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस एंड दे वांट टू कंप्लीट दिस. So how will you take that? Will they be able to like finish this business? Israel and America, will they be able to finish this business, this unfinished business according to them? या वो engage हो के इस सारी चीज़ में suck in हो जाएंगे? राणा साहब देखें, जो कल का तो पता नहीं, बट टिल टुडे हमें पता है कि इस वक्त तक जो बैलेंस है वो दैट इज इन फेवर ऑफ ईरान, क्योंकि अमेरिका के पास, इजराइल के पास एयर स्ट्राइक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड दे आर स्टिल शाइंग अवे। वो तो कह न्यूक्लियर रहे इज हैं जनरल साहब, वो अनथिंकेबल। तो कहता है कि जनाब मैं कोई एक आइलैंड जो है उसको भी ऑक्यूपाई कर सकता हूँ ईरान के को। देखिए, कहने को तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब जब ये जो फ्यूनरल हो रहा था तो हम सारों को मार सकते थे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम ईरानी सिविलाइजेशन को उड़ा सकते हैं। करने को वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेन इशू होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, हाउ विल इट बी प्लेड आउट। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम में जब ये एंटर हुए थे तो 3,500 समथिंग लाइक ट्रुप्स जो है वो एंटर हुए थे। जब वियतनाम से ये हारे हैं जंग और उन्होंने एक्सट्रीकेट किया तो उस वक्त कोई अराउंड 5,50,000 ट्रुप्स थे वहां पे। सो इनिशिएट करना तो नो प्रॉब्लम, इट्स अ माइट, बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका इनिशिएट कर सकता है। लेकिन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, दैट इज द मेन डिफरेंस जो कि आपको चेक करती है कि कर तो मैं लूंगा, इसको फिनिश कैसे करूंगा। नो हैविंग सेड दैट, इजराइल जो है वो इनका अपना क्रिएटेड एक इंटरनेशनल बुली है। इजराइल अब इतना पावरफुल हो गया है कि वो इनकी भी नहीं सुनता, उसके पास कुछ ऐसे लेवरेजेस हैं। सो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल अमेरिका को ले डूबे। जैसे आपने जिक्र किया, ये जो जंग इन्होंने लड़ी है ये फाइनेंशियली इनके लिए बहुत हैवी थी, और अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो और ज्यादा हैवी होगी। और सबसे बड़ा मसला है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉकेट का। किसी एनालिस्ट ने बड़ा खूबसूरत बात की थी कि अमेरिका ने ईरान के हाथ में न्यूक्लियर से बड़ा वेपन दे दिया, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का ब्लॉकेट। जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कुछ होता है तो स्लीपलेस नाइट्स शुरू हो जाती हैं अमेरिका में, बिकॉज पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो इफेक्ट हो रही है। स्ट्रेट, आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में 2 गोले फायर हुए, हमारा जी। 13 रुपए जो है वो फ्यूल महंगा हो गया। सो होल वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। और इट वाज इन G7 समिट जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने MOU पे साइन किए थे, बिकॉज वहां पे उन पे प्रेशर था कि पूरी दुनिया ठीक। इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। सो मेरे नजदीक इट विल बी वेरी रिस्की ऑप्शन प्लेइंग फॉर द एनिमीज ऑफ द US, अगर इन्होंने इस जंग को प्रोलॉन्ग किया तो। ठीक, ठीक है।